For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Manvinder Kaur ma'am with us, the author of Uploading God. Thank you so much ma'am for coming on our show. We are highly grateful कि आप हमारे show पर आए. Thank you, Gaurav, for inviting me on this platform, and it is a wonderful thing that these podcasts are happening, and we can voice out as authors and connect to the readers. Usually, authors only connect to the readers through their writings, but this is a unique way of getting connected with the audience. Thank you. Thank you so much. So, ma'am, before we get into the podcast और हम आपके बुक के बारे में और जानें और आपके फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में और बात करें, I would like you to please introduce yourself. आप अपने बारे में, अपने बुक की जर्नी के बारे में, आप ऑथर बनने का कैसे आपने सोचा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कुछ बताएं. Okay, so a brief introduction about myself. I have been into the field of education from the last 15 plus years. Or I used to teach English and psychology to senior secondary students. And from the past 5 years, I have been majorly into writing. I've been writing blogs and articles for websites. And then last year, this beautiful thing happened. And I would not say it's a beautiful thing because of COVID. But जब हम सब घर में बंद हो गए थे, कैद हो गए थे, तो और कुछ नहीं था करने के लिए. तो one day I was just scrolling the Facebook. And I got this beautiful ad of a webinar. And उन्होंने जब मैंने webinar attend किया तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बुक कैसी लिखी जाती है और आप बुक लिख सकते हैं खुद से. तो that was a golden opportunity for me because before this मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बुक लिखूं. I used to write, but I did not had thought about writing a book. And they gave me this publishing house and this writing team. They gave me the pedestal, the platform to venture out into this beautiful journey of book writing. So writing, I was from last 15, 20 years, yes. Or maybe if I say from my childhood only. But serious writing like books, I started last year only. And now the journey has started, yeah. So basically we can say that लॉकडाउन से बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कुछ अच्छी हुई हैं लोगों की लाइफ में. Definitely, and that is what my book is about. कि हमारे देखने का नजरिया towards the life. That is what. Okay. So ma'am, as you all know that the book is released and I hope कि बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा. But अभी भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने बुक को नहीं पढ़ा होगा. So what they can expect from that book? Like, can you give us some insight कि हम क्या expect कर सकते हैं उस बुक से? जी जरूर. तो when I thought that I will write a book, तो spirituality एक ऐसी चीज है जो मेरे दिल के बहुत करीब थी. And during the darkest of your times, everybody goes through ups and downs of your life. तो जब हम बिल्कुल clueless हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता हमारी लाइफ इतनी बुरी तरीके में क्यों फंस गई है या हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब एक रास्ता दिखाई देता है, वो भगवान होता है. एंड जनरली हम लोग भगवान का कंसेप्ट जो है ना रिलीजन से कनेक्ट कर देते हैं. रिलीजन अकॉर्डिंग टू मी इज जस्ट अ टूल टू कनेक्ट टू गॉड, बट हम लोगों ने उसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है, बहुत ज्यादा रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स एंड टू मच रिस्ट्रिक्टेड इन रूल्स एंड रेगुलेशंस. पाठ नहीं किया तो दिन में शुरुआत अच्छी नहीं होगी. इफ यू डू नॉट कीप फास्ट, या हम अगर 16 सोमवार रखेंगे व्रत के तो हमें ये मिलेगा. ठीक है, मैं इनको गलत नहीं कह रही, बट हम अगर सिर्फ इन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर बंद के रह जाते हैं, देन जो आपकी सोल की ट्रैवलिंग है या सोल की जर्नी है वो नहीं हो पाती है. तो हमें लगता है कि जैसे हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो हमें भगवान क्यों सजा दे रहे हैं. ठीक है, तो बट इट्स नॉट अबाउट कि ही इज गिविंग अस दैट. सजा नहीं देते, भगवान कभी नहीं दे सकते सजा.
तो ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग्स थी ना, ब्रेकिंग द मिथ्स एंड व्हाटएवर, सो आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस दीज थिंग्स कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो सही है या गलत है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद अदर्स कि ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दीज थिंग्स, व्हाट इज गॉड, व्हाट आर यू एज अ ह्यूमन बीइंग, तुम क्या हो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारी लाइफ में कि व्हाट इज यू, knowing yourself, knowing your guru, and then later on in the chapters healing एक बहुत बड़ा एक चैप्टर था या कंसेप्ट था जो बहुत जरूरी है आजकल की लाइफ में, क्योंकि हम बहुत डिपेंडेंट हैं on medicines and on outer medications rather than healing ourselves. So I wanted to talk about these things. Then the second last chapter is death. So talking about those issues, I just wanted to address them and share my thinkings, my thoughts with the audience. Basically, it seems to be really interesting because बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सारी चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। जैसा आपने भी शेयर किया कि जब लाइफ में अच्छा टाइम नहीं चलता है तो लोग सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या लोग अपने पुरानी चीज़ों को याद करते हैं कि अच्छा मैंने ये मन्नत छोड़ी हुई थी, लगता है इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज भी। स्पेशली व्हेन यू कम्स टू लाइक जो अभी भी जो रूरल इंडिया का एरिया अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट आई बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश और बिहार के पास ही ये सारी चीजें, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वाराणसी जी, तो जी. अभी भी जैसे गाँव में अगर देखा जाए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एंड आई नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट वो बिलीव से उन्हें दूसरी चीजें भी जाननी चाहिए। मेरे मानने से ना ये जो रिचुअल्स है इनका सही जो मूल था ना वो हमने खो दिया। मतलब कि जो ओरिजिन था इनका वो खो दिया है और हम सिर्फ वो प्रैक्टिस में बंध के रह गए हैं कि हमें वो करना है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग इट एंड often we are misled by the agents of this religion associations. जैसे कि अगर हम आई एम सिख तो आई फॉलो सिख रिलीजन। हमारे जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी, उन्होंने सब भ्रमों से दूर किया था। मतलब कि उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ सिमरन करो, सेवा करो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो, दूसरों को हेल्प करो, अच्छे काम करो एंड भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं। तो बट आज भी आई एम वेरी सॉरी टू से people belonging to every kind of religion, हम लोग बहुत भ्रम में जीते हैं। मतलब थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो we run to any बाबा और पंडित जी प्लीज हमारे नक्षत्र देखिए क्या है, इनको ठीक करें। running towards these things is not the solution. Understanding the core of the problem is more important. बेसिकली जो जैसे ये सारी चीजें जिस फेथ के लिए स्टार्ट की गई वो कहीं ना कहीं कम हो गया और वी आर टेकिंग इट एज अ डील कि अच्छा ठीक है ये किया मैंने तो इसका फल ये मिलेगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है आजकल। तो मेरा जो आइडिया था कि भगवान क्या है, भगवान को अगर हम याद करते हैं तो या तो डर से याद करते हैं या लालच से याद करते हैं कि मेरी ये अपॉइंटमेंट है या मेरे को जॉब दिला दो या मेरे को मेरे बच्चों को ठीक रखना, मेरा ये सुखी रखना मुझे ना। तो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ डिविनिटी वी डू नॉट रिमेम्बर हिम, ही इज जस्ट पास्ड समवेयर। उस एसेंस को हम लोग भूल चुके हैं और फिर हम जब प्रॉब्लम्स में जाते हैं तो फिर हमें याद आती है कि हाँ कोई ऐसी चीज थी जिसको हमें याद करना था। तो मैम लाइक आजकल का अगर ये जो बुक इंडस्ट्री देखी जाए या अगर हम लेट्स कंपेयर टू अ मेजॉरिटी ऑफ लोगों को अगर देखा जाए, सो बेसिकली द रीडर्स आर आई गेस दे फील मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द रोमांस जॉनरा या जो फिक्शन वर्ल्ड है वहां पे। एग्जैक्टली जी। बट व्हाट मोटिवेट्स यू टू चूज एंड राइट ऑन दिस टॉपिक? लाइक अगर कोई भी यहाँ पर देखें कि ठीक है कोई अगर नया ऑथर है तो दे रादर प्रेफर टू बी ऑन अ सेफ साइड रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स। और जो चीज आपने लिखी है दैट्स वेरी रेयर। लाइक
बहुत मतलब आई कैन से लोग वी कैन नॉट से एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास कि लोग डरते हैं या फिर वो अपनी सेफ साइड में, वो अपने जोन में रहना चाहते हैं कि चलो ठीक है हम ऑथर बुक पब्लिश करते हैं ऐसी चीजों को जो मासेस को अपील करें, जो लोगों तक ज्यादा पहुंचे, rather than इन सारी चीजों में टच करना. So what motivates you to write on that? So thanks for asking me this question. Actually, it's a very interesting one. And when I started writing, तो मैं fiction ही लिखना चाहती थी पहले. But because I said spirituality was very close in my heart, and मुझे जब मैं बहुत बुरे वक्त से निकल रही थी तो मुझे एक यही चीज थी जो मुझे कनेक्टेड रखी और अपने मतलब टू गेट बैक इनटू द स्पिरिट ऑफ फाइटिंग और नॉर्मल रहने में बहुत काम किया. तो मुझे लगा कि जब कोई इंसान अपनी जर्नी शुरू करता है किसी भी चीज के लिए तो एक भगवान को श्रद्धांजलि देनी होती है या याद करना होता है या कुछ भी. सो आई थॉट दिस इज लाइक my favorite, first of all, it's my favorite subject. Later on I can write many other books, जितनी मर्जी लिखो, जो मर्जी करो, आगे जर्नी तो शुरू हो ही चुकी है. But the first one should be like you are giving reference to the God, or it is like my offerings to God that whatever I have learned in my life regarding these spirituality, भगवान के बारे में जो भी कुछ सीखा अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट किया, जो भी चीज मैंने अच्छी सीखी, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद अदर्स बिकॉज अल्टीमेटली यही भगवान कहते हैं कि हर एक में मैं हूँ और मुझे पहचानो. और मेरा यही था कि मैं जो फर्स्ट वर्क लिख रही हूँ ये एज एन ऑफरिंग टू गॉड. So that was the main idea. So I did not focus it as a tool for marketing my name or branding my name. That can happen in a later stage. Whatever, it's a journey. It's just started. So that was my first कि जो कर रही हूँ वो पहले भगवान के चरणों में श्रद्धा फूल की तरह हूँ. In fact, here's a short story. मैं एक इंसिडेंट, जैसे जब हम लोग छोटे थे, अगर कोई भी न्यू कॉपी आती थी या कुछ ऐसा होता तो मेरे पापा जैसे अभी भी ऐसा करते हैं, हम सबके साथ हम लोग अब एक हैबिट में आ गया कि हम उसके ऊपर ना पहले लिखते थे श्री गणेशाय नमः, उसके बाद ही हम लोग कुछ भी लिखना उस पर स्टार्ट करते थे. तो इट्स सॉर्ट ऑफ इंडियन, आप कह सकते हैं कि ये हमारे अंदर है. यस, हाँ. That's really beautiful. आपने बोला तो मुझे भी याद आया कि जब भी हम इवन एग्जाम पेपर्स भी शुरू करते थे तो हम भगवान का नाम लेके या लिख के उसके ऊपर, जैसे आपने श्री गणेशाय नमः बोला तो हम लोग एक ओंकार है हमारा साइन वो लिखते हैं. तो इट इज जस्ट दैट एट द फर्स्ट स्टेप भगवान हमेशा साथ चलेंगे तो हमारी पूरी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी. डेफिनेटली. इनफैक्ट अभी भी अगर कोई चीजें आती है मार्केट से, जैसे लेट्स से किसी ने फोन लिया या कुछ भी ऐसा हमने लिया, तो पहले हम उसे जाते हैं भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद ही उसे ओके. सो लाइक मैम, कैन वी एक्सपेक्ट मोर सच बुक्स फ्रॉम लाइक अभी नेक्स्ट क्या आगे आने वाला है? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट मोर? Right. So now basically I have started working on my fiction because basically I'm a storyteller. मेरे अंदर जो लिखने का जो था वो बेसिकली स्टोरीज ही थी. तो अब मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं फिक्शन राइटिंग पे, एंड आई एम ऑल्सो हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला 15 साल से ज्यादा मैं बच्चों को पढ़ा रही थी. तो इंग्लिश भी जब पढ़ाते हैं तो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने यही सब्जेक्ट चूज किया, या मैं ये कहूंगी कि कुदरत ने मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ाया कि मैं दूसरों को भी यही पढ़ा सकती हूँ. तो व्हेन अ टीचर इज लाइक टीचिंग स्टोरी, इट्स नॉट लाइक शी इज जस्ट स्पीकिंग द वर्ड्स. वो पूरा अच्छे से उसको नरेट करना, उसके समझाना कैरेक्टर्स, मूड्स, एंड इट इज वेरी क्लोज टू लाइफ. तो ये बहुत मजे आते थे मुझे समझाने में भी और बच्चों को. तो उसी जर्नी में लाइक आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज आल्सो. एंड देन जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको जब पता चला कि मैम आप लिख रहे हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम हमें भी सिखाइए. तो आई सेड दिस इज अ गुड थिंग एंड नाउ आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स आल्सो. तो मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ बच्चों को सिखाने के लिए. एंड फिक्शन बुक राइटिंग कोच भी मैं बन गई हूँ फॉर दैट मैटर. तो ये है कि अब 2 प्रोजेक्ट्स हैं विच आर इन द लाइन. एक मेरी खुद की फिक्शन नॉवल है विच इज आर यू स्टिल माइन. So it's based upon
love story which is, as you said, romance का जो genre है वो it's always flourishing. तो वैसे भी the life is about love only. तो वो story based है एक couple की जो पहले separated हो जाते हैं, फिर later in the life how they meet, and then it is like in the air की will they meet or not, are they destined to meet or not. So it is like that. और दूसरा जो प्रोजेक्ट है जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी आई वांटेड टू, इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैंने सिखा दिया एंड देन इट इज ओवर. सो आई वांट टू गेट, जो मैंने फील किया कि जब आप लिखते हो, आपकी बुक आती है and then the name is on the book, your name is on the book, it is a different feeling altogether. I mean, it's a beautiful feeling. I just wanted my students also to feel the same. So we will get that book also published. उनकी जो stories, they will write short stories and उनकी compilation शुरू हो चुकी है. तो उनकी भी story जो book है वो 1 month के अंदर we are going to release it on Amazon. So these 2 projects are in the pipeline, and I'm hoping for the best, that authors love, the audience love whatever we are going to go next for. Definitely, ma'am. So, ma'am, like my next question to you is like, where do you see yourself in the upcoming 5 years? And one more thing in that, like, how do you see yourself as a brand? Like, आप ऐसे कुछ प्लान कर रहे हैं अभी, जैसे कि एक certain image बनाने की audience की जगह में, like अगर कोई आज से 2-3 साल बाद आपकी बुक उठाए कि ओके इट्स अ बुक बाय मनविंदर कौर मैम, तो उसके माइंड में क्या इम्पैक्ट आना चाहिए? इस बारे में भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं? एक स्ट्रेटजी बना के चलना है, या फिर इट्स जस्ट लाइक रैंडम कि अच्छा ठीक है अभी देखते हैं जो होता है आगे, वी कैन जस्ट प्लान आउट दैट? ओके, सो अगर मैं कहूँ कि मैंने पहले जब जर्नी शुरू की थी तब मैंने कुछ प्लान किया था, ऐसा कुछ नहीं है. बट एज इफ नाउ आई एम टेलिंग यू दैट I have started coaching other students also. So definitely now a plan is etched up. Now I am thinking about strategies also. So for now I will be coaching the students and for that proper workshops will be conducted which are going right now also. And फिर वो उनसे जो books generate होंगी वो भी मेरी उसमें marketing में ही आएंगी. Although the names will be of the students only. They will be guided by me, but the names will be theirs. Then definitely as an author, I will be churning out books, definitely. Because वो जो अंदर आपके writing का कीड़ा है वो आपको बैठने नहीं देता. तो वो तो जब सब सारी दुनिया सो जाती है, then it gets activated and then you have to write something. And I believe a writer is a writer. Sorry. A writer is a writer only if he writes daily. So daily लिखना बहुत जरूरी है. तो 5 साल के बाद अगर आप मुझे पूछें तो जनरली स्पिरिचुअली अगर मैं बोलूं तो स्पिरिचुअली हम लोग इतना सोचते नहीं है कि दूर की, बट अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ठीक है. 5 साल के बाद I see myself as an established author and with lots of books on the shelf, and definitely more than an author I want to be a coach because I love teaching children. That is so my passions now, teaching and writing, both are getting connected and I'm just living my dream right now. So the end, basically the thing is कि like आपके पास 15+ years का experience है, तो that has to be there somehow. Like आप author भी बन जाए लेकिन कुछ भी हो जाए, but that has to be because लोग कहते हैं 21 दिन में habit हो जाती है, तो ये तो 15 साल से ज्यादा की चीजें हैं. 15 साल से, yes. तो बेसिकली और मजे की बात ये है कि जब आप पढ़ाई हो रहे हो जो आप खुद को बहुत अच्छा आपको लगता है, तो वो ना फिर it does not seem like work, it's like your passion. बाकी सब रूटीन वर्क लगती है और वो है आपका ड्रीम. जब आप अभी आपसे बात करना भी अपने बुक के बारे में, अपनी राइटिंग के बारे में, आई एम लविंग दिस सो मच. सो दिस इज नॉट अ वर्क फॉर मी, दिस इज जस्ट अ वेरी गुड थिंग व्हिच इज हैपनिंग. बेसिकली इट इज सेड ना कि अपने अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो वो करने का आपको उसको प्रेशर नहीं लगेगा कि ओके ठीक है मैं काम कर रहा हूँ. इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल थिंग कि बस हो रहा है. पैशन है, आपका पैशन ड्राइव करता है आपको. फिर चाहे आप पेंटिंग कर रहे हैं, चाहे आप म्यूजिक जनरेट कर रहे हैं,
So it's just creativity, and then कोई प्यास नहीं लगती, कोई नींद नहीं आती, कोई भूख नहीं लगती, घंटों बीत जाते हैं, हमको पता नहीं चलता. Okay. So that is what. Yeah. Okay. So ma'am, basically like now coming to this industry area, like do you feel competitive, like a neck to neck competition in this field? Like as we can see कि daily बहुत सारे, daily तो नहीं कह सकते, but still in a week like बहुत सारे नए authors आ रहे हैं. And lockdown के बाद से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि writing के field में आ चुके हैं, because the publishing is very easy now. Kindle publishing, self publishing हो गया, या बहुत सारे publication houses हो गए हैं. So what sort of competition do you feel in this field? Gaurav, rather than competition, I feel एक ना competition होता है जो आपको गिराता है नीचे. I feel this competition which has come up, it's actually good for the market. It actually is pacing up the market, and मुझे competition feel नहीं होता, because जब आपके पास content and high value है, तब आपकी audience आपके पास आएगी ही आएगी. You know, people are it is just getting that one taste to them. If you know, उनको अगर आपका पता चल जाता है, ग्रेजुअली पता चलेगा, वो भी ओवरनाइट नहीं पता चलेगा कि आपने एक बुक लिख दिया तो सब फैन हो गए आपके, ऐसे नहीं है. तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. दिस इज एडवाइस फॉर न्यू ऑथर्स ऑल्सो. यू डोंट हैव टू लूज हार्ट इफ योर फर्स्ट बुक इज नॉट सो वेल रिसीव्ड. It's just because there are some strategies these days which you have to adopt, the marketing, the branding and everything. तो उसमें जाते जाते भी उसको समझते भी थोड़ा patience की जरूरत है. Immediate results success में कभी भी नहीं आते. तो कहीं ना कहीं you have to get out of your comfort zone and approach in that manner. And competition की जहाँ बात करें तो मुझे तो अच्छा लगता है कि दूसरों के ideas भी सुनने. हर एक की अपनी मार्केट है, हर एक की अपनी पहुंच है, और अच्छा लगता है कि दूसरे भी लिख रहे हैं. तो एंड मोरओवर, जो आप अभी आपने बात किया कि बहुत सारे ऑथर्स बन गए हैं, डेफिनेटली पीपल आर कमिंग अप विद देयर बुक्स, बट there is a difference. People are mostly, जो मैंने observe किया है, maybe again I'm wrong, mostly people are writing as a business, books as a business tool, and they are not fiction book, they are non-fiction books which tell about their message, what they are going to, like coaches ही नहीं, आजकल उबर के बहुत आ रहे हैं कि इंटरनेट की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, एंड facility of internet is providing them lot more coverage for the clients, so they are, you know, उनकी actually market बढ़ गई है. अभी competition का ये है कि अभी if I want to conduct a workshop, I can have audience from all over the world because of the technological advancement we have. So as such, if you are focused, if you are concentrated, if you are having the right tools and technology with you, you will be there for a longer stay. Just have that dedication and that grit कि I am going to stay here. सिर्फ experimentation के लिए अगर आप जाएंगे कि देखते हैं होता है कि नहीं, फिर नहीं होगा. True. So basically you're a sort of person जो ये सोचता है कि creativity में कोई competition नहीं होता. Everyone is unique and it's good for, it's a healthy competition. Yes, it is a healthy competition. मैम, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि you're not a writer अगर आप रोज नहीं लिखते हैं. So what's your writing schedule? Like आप कब लिखते हैं, और like आप regularly लिखते हैं या फिर फोन में नोट कर लिया फिर बाद में बैठ के लिख रहे हैं? So how does it goes with you? Okay, so I am a kind of an old school writer. I don't use technology when I'm writing. Laptop नहीं, phone नहीं. Although बहुत अच्छे tools हैं आजकल, तो आपको type करने की ज़रूरत नहीं है. There is a tool called Dictation.io. उसमें सिर्फ आप बोलिए. I'm sorry for my throat today. Not an issue. उसमें सिर्फ आप बोलिए and आपका वो type करके आ जाएगा. जो आप बोल रहे हैं, तो not an issue. But writing जो मेरे लिए है वो particularly with my favorite pen and on my favorite writing pad, because then only I feel that I am putting in some way to my creativity. तभी मेरे characters live होते हैं, तभी मैं उस story में घुस पाती हूँ. So this is just my way of doing things, and my writing schedule
as I say, if I'm teaching that to my kids कि भाई अगर आप राइटर हो तो आप रोज लिखोगे, तो चाहे वो 10 लाइनें हैं, चाहे वो 5 लाइनें हैं, चाहे आप सिर्फ 1 लाइन ही दे रहे हो, बट आप राइटिंग तो रोज करोगे। तो मैं जब लिखती हूँ, बेसिकली आई एम लेट नाइट स्लीपर, तो रात को जब सब सो जाते हैं तब वो मेरा टाइम होता है, तब मैं लिखने बैठती हूँ। तो तब कुछ भी लिख सकते हैं। जब कोई स्टार्ट कर रहा है सपोजिंग, तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्टोरीज लिखनी है, बट व्हेन यू आर जर्नलिंग यू अंडरस्टैंड, जर्नलिंग मीन्स जस्ट यू टॉक विद द डायरी, जैसे हम पुराने जमाने में कहते थे डायरी राइटिंग। यू जस्ट पुट इन योर थॉट्स व्हाटएवर इज कमिंग इन योर माइंड। तो उससे आपको अपने बारे में भी पता चलता है एंड आपको बहुत आइडियाज आते हैं, आप कैरेक्टर्स के बारे में सोच सकते हो। So basically, ma'am, when I was in, I guess in my class 9th, I guess, तो मैंने भी ना बुक्स लिखी हुई थी एक। तो उस टाइम क्या था कि हमारे मतलब एरिया में या फिर फैमिली में ऐसा कुछ था नहीं कि किसी को पब्लिशिंग के बारे में कुछ पता हो। तो आई वेंट टू अ प्रिंटिंग प्लेस और वहाँ पे मैंने अपनी वो पब्लिश की थी और खुद ही से मैंने प्रिंट किया था उसका कवर, और तो स्टेपल करके मैं सबको देता था। तो बेसिकली और अभी भी मैं कभी कभी लिखता हूँ। सो व्हाट आई पर्सनली फील ना, मैं भी कभी भी लैपटॉप या फोन ये सारी चीजें नहीं यूज करता। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप लैपटॉप पे लिखते हैं ना, तो आपकी जो थॉट है ना वो बाउंड हो जाती है। बाउंड इन द सेंस ना कि जैसे जितनी स्पीड से मैं सोचता हूँ उतनी स्पीड से लिख नहीं पाता, तो चीजें भूल जाती हैं। और पेन और पेपर में क्या है ना कि वो जो माइंड में आ रहा है वो लिखते जाओ और मतलब वो एक फ्लो बना रहता है बेसिकली। तो हमें बच्चे, जैसे हम बचपन में एग्जाम लिखते थे, तो आदत वैसी पड़ी हुई है ना दिमाग को, तो वो आदत छूटना बहुत मुश्किल है। लैपटॉप वैसे भी फॉरेन टेक्नोलॉजी लगती है, तो हाथ सेट नहीं होते, बट ग्रेजुअली वो भी हो जाता है। बट जो द बेसिक जो कहते हैं ना, जो लिखने की कला है, वो उसी में आती है प्रॉपर। So, मैम लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज अ सॉर्ट ऑफ एक ओपिनियन के बारे में अगर बात की जाए तो व्हाट आई पर्सनली फील मैम कि द नंबर्स ऑफ रीडर्स आर गेटिंग लेस डे बाय डे। लाइक व्हेन इट कम्स टू रीडिंग अ बुक एंड कंप्लीटिंग इट नीड्स हेल लॉट ऑफ पेशेंस, लाइक बहुत पेशेंस चाहिए होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू टुडेज जनरेशन, लाइक अगर एक 15 सेकंड की इंस्टाग्राम रील है तो उसमें भी लोग स्वाइप अप करते रहते हैं, और रिजल्टिंग इनटू दैट कि जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना कन्वीनियंट होने के बाद भी किंडल हो गया, हमारे पास फोन में बुक्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में प्रोवाइड कराती हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी बुक नहीं पढ़ना चाहते या बुक नहीं पढ़ते हैं। So, according to you, what measures we can take to just make them inclined towards the book, या फिर हम कैसे इस गैप को थोड़ा कम कर सकते हैं? ओके, तो हर एक फेज में ना कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। राइट नाउ इन द एरा इन विच वी आर लिविंग, वी कैन नॉट एस्केप दैट थिंग दैट रीडिंग जो हैबिट है वो डिग्रेडिंग हो रही है। तो एक तो ये है कि पहले तो हमें वी शुड एड्रेस दैट सिचुएशन, वी शुड कम इन टर्म्स। तो जैसे आपने बोला, बहुत अच्छे आजकल टेक्नोलॉजी ने ही हमें वे आउट दिए हुए हैं कि किंडल वर्जन है, आईपैड्स पे पढ़ सकते हैं हम। बट फिर भी जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं पढ़ते, तो ये बचपन में ही अगर आदत डाली जाए बच्चों को, इवन जबकि उनको समझ भी नहीं है, and this thing comes from the very surprisingly, जो हमारे अब्रॉड के कंट्रीज हैं जितने भी आप देखो, बच्चों को उन्होंने हैबिट डाली होती है। लेटर ऑन whatever the kids do, that is their choice of life, but it is a habit with the parents कि जब बच्चा छोटा है उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, but they will, before sleeping, they have this habit that they will read out the story. The parents read out the story to the child. और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो आप हर एक ने ये मूवी जरूर देखी होगी, बेबीज डे आउट।
तो उसने वो बच्चे, आई थिंक सो ही इज नॉट इवन 1 year, ही इज जस्ट क्रॉलिंग, तो वो बच्चे को उसकी नानी उसकी स्टोरी पढ़ा रही होती है, एंड ही गेट्स सो मच, यू नो, ही अंडरस्टैंड्स दैट. तो बेसिकली इफ वन पर्सन, हमें अपनी जनरेशन को आगे पढ़ाना है तो ये रूट लेवल पे वर्कआउट करना पड़ेगा. बट दैट इज अगेन योर क्वेश्चन, कमिंग टू योर क्वेश्चन कि आजकल के बच्चों को कैसे बताया जाए. तो ये फिर से जहाँ पे वो मास लाइक स्कूल्स के लेवल पे ही उनको बताया जा सकता है, या घर पे भी अगर पेरेंट्स इनिशिएटिव लेंगे. इट्स नॉट डायरेक्टिंग द चाइल्ड. बच्चा हमेशा बिहेवियर को देख के अडॉप्ट करता है. तो अगर हम बड़े लोग पढ़ना शुरू करेंगे तभी बच्चे देख के पढ़ेंगे. अगर we drop our phones and laptops away for half an hour in the night before we are, you know, sleeping, before hitting the bed, we just read for 15 minutes, even 15 minutes. तो once अगर ये आदत पड़ जाती है ना, तो वो 15 minutes कब 1 घंटा हो जाता है और कब हम उस दुख के बहाव में बह जाते हैं पता नहीं चलता. तो it's just about making a habit of everyday reading, चाहे वो कुछ भी हो. And I would not say reading newspapers, because reading newspaper is one thing which is very depressive. बच्चे तो कभी नहीं पढ़ेंगे. उनको अट्रैक्टिव चीजें अच्छी लगती हैं, खुश चीजें अच्छी लगती हैं, जो खुशी देती हैं, जो हंसी देती हैं. तो जो उनको पसंद है वो पढ़ाए. Just developing a habit of reading, that's what it is. बिल्कुल मैम, जो बेसिकली आपने अभी कहा ना कि अपने हमें घर से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए. बेसिकली बहुत सारे ऐसे ऑथर्स मिले हैं मुझे इस पॉडकास्ट के थ्रू जिन्होंने अपनी स्टोरी में ये बताया है कि उनके अपने पेरेंट्स उन्हें हर समर वेकेशन में, या कह सकते हैं कि हर वक्त उनके पेरेंट्स उन्हें बुक्स खरीद के लाते थे बचपन से ही. तो उस वजह से उनके अंदर वो रीडिंग हैबिट डेवलप्ड है. एंड अगर देखा जाए मैम, तो जैसे बहुत सारे अगर स्कूल्स देखे जाएंगे, अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे सिलेबस के बुक छोड़ के कोई और बुक पढ़ना ना, एक बहुत, वो बच्चा फोन चलाए वो ठीक है, बट अगर वो कोई और बुक पढ़ रहा है या नॉवेल पढ़ रहा है तो दैट इज समथिंग रियली रॉन्ग. तो ये सारी चीजें टाइम लगेगा बट बदलेंगी जरूर, बिकॉज लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं. हाँ, a very large population, especially I'm so amazed by पहले ना मैं इतना Instagram यूज नहीं करती थी, but when my book came out, it was like an outburst of young authors which are reaching out to me. I was like so surprised and very happy also that still there are people, there are youngsters who want to write, who want to read, who are promoting this thing. I was so happy, and I'm very happy कि young generation पढ़ने और पढ़ाने में फिक्शन या स्टोरीज में बहुत बिलीव करने लगी है. So it's not died out completely, if I say. Yeah. Okay, so ma'am, like we have talked about your journey, we have talked about your book, we have talked about your upcoming future plans related to books and all those things. Now coming to your personal life, can you share with us like one of your very happiest moment as of now? Okay. So for a woman, I suppose I'm being very biased here. For a woman, becoming a mother is the most happiest moment in the life, and I'm blessed कि I am blessed twice with this thing. I have 2 beautiful sons, and one is 18 years old and the other is 12 years old. So although they are like very naughty and but they I always had this feeling कि जो एक वुमन को ये ब्लेसिंग मिली हुई है कि हम एक जीव को जन्म दे सकते हैं सृष्टि में. एक वी कैन फील दैट लाइफ लिविंग इन अस. इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ गॉड. That is where the creativity of God you experience in yourself. From just nothing or from a drop, a life is created. Amazing. जितनी मर्जी भी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो गई है, ये चीज डुप्लीकेट नहीं हो पाई और ना ही हो पाएगी. That is the essence. So this was the most beautiful day in my life. मैम, हाउ वाज देयर रिएक्शन कि जब उन्होंने सुना कि मम्मा राइटर बन गई या मम्मा की बुक आ गई? सो व्हाट्स देयर रिएक्शन?
You know, वो हमेशा होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर. तो they were like, oh really, you are going to write a book now? Yeah, and now as if, you know, I'm getting a call from you for the interview, 2-3 people. Again, there was some, you know, written interviews and a Facebook live interview also there. Now they are like getting the feeling is sinking in. Otherwise, it was like, okay, you're a writer, okay, fine, go ahead and write. But jokes apart, they've always supported me. They have always, and especially with this in technological things like making Insta reels. And I was not so much into these things, but as I'm growing, as I said, na marketing जरूरी है, तो इनके बारे में knowledge होना जरूरी है, because ultimately you want to reach your audience. There is a very beautiful quote which I just heard yesterday. In any kind of a business, the best known beats the best. To make it understandable, जो बहुत नामी है, जो नाम वाला है, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है अगर इन कंपैरिजन विद जिसका नाम नहीं है बट उसके पास नॉलेज बहुत है. तो इट्स लाइक यू नो दिया जो जल रहा है एक कमरे में, बट अगर उसका उजाला नहीं होगा सारी जगह तो नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी पावर है. You have to be known to people, you have to be known to your audience, and then you can get the success. बेसिकली लोगों के सामने दिखना पड़ेगा, अवेलेबल रहना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है ये भी एक है. अदरवाइज बहुत बिल्कुल सही कहा आपने मैम. यू नो, आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर उठा के देखें तो इतने सारे लोग हैं, ऐसे कोई इंडस्ट्री नहीं कि जिसमें आप सिंगल अकेले हैं. तो उसमें जब तक आप लोगों, वही कहते हैं ना कि जो जितना ज्यादा दिखता है वो उतना ज्यादा बिकता है. एग्जैक्टली, वही. और जो भी आपने बोला ना मैम कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो यू नो जब मैं क्लास 11th में था तो मैंने जब मतलब फाइनली मेरी बुक आ चुकी थी उस समय, तो आ चुकी थी इन द सेंस कि मेरे शहर में लोगों को पता था, मैं देता था उन लोगों को बुक. अच्छा ठीक है, मैंने तो इसी तरह लोकल न्यूज़पेपर वाले और ये 2-3 और मीडिया चैनल वालों को मेरे पास फोन आया कि आपका इंटरव्यू करना है. तो मैंने कहा ठीक है. तो संडे का दिन था, पापा घर पे, सभी लोग घर पे थे. तो मैंने बताया कि ऐसा है कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है. तो पहले सब लोग बहुत हंसे कि अच्छा ठीक है इंटरव्यू होगा इनका. तो उसके बाद सब लोग खा पी के नॉर्मल थे कि अच्छा ठीक है इंटरव्यू होगा, चलो ऐसा कुछ नहीं होता. और जब अचानक से डोर पे बजी, मैंने बताया कि अरे सारे रिपोर्टर आ गए भाई, न्यूज़, अरे इंटरव्यू होने वाला है. तब सबको भरोसा हुआ कि अच्छा वो सच में आने वाले थे. यस. So that's what I'm saying कि अभी जब हो रहा है ना, so then the feeling is sinking in. Okay, finally, now they are like थोड़ा सा proud feeling जैसे ना, no, okay, fine, my mom is a writer, my mom is a coach also. ना अभी थोड़ा है. So my next question is like, जब आपकी बुक रिलीज हो रही थी तो what was your feeling like? आप 15 साल से एक इंडस्ट्री में थी और फिर यू नो काफी लोग आपको जानते होंगे, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था कि आपने कोई अपने बुक के लिए बेंचमार्क सेट किया था कि चलो ठीक है इतने लोगों को, मतलब इतनी मेरी बुक की सेल होनी चाहिए थी, या ऐसे ओपनिंग होगी, या मतलब क्या चल रहा था उस वक्त आपके माइंड में? Okay, so right now also when you are saying these things, I am getting goosebumps. जब मेरी बुक मैंने पहले कंप्लीट हुई, तो जिस दिन ये मतलब मैंने खत्म किया अपना मैन्युस्क्रिप्ट, तो that was an achievement in itself कि finally you know I have written a book material पूरा proper. एक 30-40 हजार वर्ड्स लिखना बहुत एक बड़ा माइलस्टोन होता है. बट एंड गिविंग अ क्वालिटी कंटेंट, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ऐसे ही लिख दिया, जो भी मन में था वो उठा के लिख दिया तो रीडर्स को अच्छा लगे या सब. तो फाइनली व्हेन इट वाज, आई गॉट द कॉल फ्रॉम माय पब्लिशर्स दैट मैम योर book is there in our hands. It was, believe me Gaurav, it was the same feeling when I held my child in my hand for the first time. So it was like giving a birth to a baby again. It was so beautiful seeing your name and seeing your book in the hands of a publisher. It was beautiful, and that feeling cannot be expressed, but it is very beautiful. And I had never thought about it कि हाँ मुझे बहुत लोग जानते थे in education industry. And एक बहुत beautiful चीज़ और भी हुई थी कि जब हम अपनी जर्नी शुरू किए थे, कि जब हमने लिखना शुरू किया, तो
first even I was coached by my mentor how I have to write the book. तो उन्होंने एक दिन हमसे कहा कि आज हम बुक लिखेंगे नहीं, आज हम एक ऐसी चीज करेंगे जो बहुत मैजिकल है. तो हमने कहा भाई आज पता नहीं क्या होगा. तो then he said कि we are going to announce to the world today that you are going to write a book. तो उससे पहले हम हिडन में थे कि हम लिख रहे हैं. And then he said कि ये मैसेज है आपका और आप अपना अभी कोई बुक कवर कैनवस से उठा के just announce to the world that you are doing this. Okay, first बहुत डर लग रहा था कि हाँ पता नहीं कैसे क्या. Coming out of the closet is very difficult. True. Living ordinary is very simple, but living a little bit even special, becoming a mini celebrity in your own society is a challenging job. तो कैसे लोग बोलेंगे फेसबुक पे स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, क्या होगा, क्या सोचेंगे कि बढ़िया ही बुक लिखने वाली या क्या होगा. तो but by the God's grace, when I posted that, it was really magical at that point of time also. The blessings were pouring like anything. Go and win and very good, and बहुत blessings मिली तब भी. और जब book finally release हुई है तब भी बहुत blessings by the grace of God. It's going on well. I'm getting good reviews and Amazon #1 bestseller भी गई है वो. तो I never thought about it कि मेरी इतनी monetary wise मैं इतने sell कर लूंगी या ऐसे हो जाएगा, but it's happening on its own and I'm very thankful and grateful to God. Really, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होती है वो ये होती है कि अगर आप कुछ नया शुरू करें या अगर आप कोई ऐसी चीज करें जिस पे आपको बहुत टाइम से आपके एफर्ट्स लगे हुए हैं और वो सारी चीजें अच्छी होती जाएं तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स इन द वर्ल्ड. Exactly. Ma'am, my last question to you of this podcast is, what are our advices for the upcoming authors? Like आप तो budding authors को coach भी करते हैं. So what's your one piece of advice for the authors जिनकी बुक अभी भी उनके लैपटॉप में पड़ी हुई है, पब्लिश नहीं हुई है, या अभी वो सोचेंगे आपकी पॉडकास्ट सुनने के बाद कि अच्छा ठीक है अब लिखना शुरू करते हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल. My first advice is what I practice: write daily. The first and very most important advice is this only, and write daily. Second is, if you want to write daily, you have to read also daily. It's just like if you want to speak, you have to listen. So the same way goes. तो अगर लिखना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा. अगर मैंने आज इतना कुछ लिखा है या कुछ है तो years and years of reading has gone into that, and then only quality content will come out. And last advice I would say, last but not the least, you have to stop thinking about it. How is it going to happen and when it is going to happen? Just forget everything, pick up the pen, pick up your laptop, wherever you feel comfortable, just start writing. You will find the ways. Once you make the decision, आपको रास्ते खुल जाएंगे खुद से, and make a positive start and just go about it. आजकल बहुत कुछ है अवेलेबल, पुराने जमाने में नहीं होती थी. जैसे you said, publishings are so easy these days. Writing guidance is very easy these days. You will find so many people helping you out, and there is no excuse for you to just keep on thinking. Just go ahead and make your dream come true. And my workshop's name is also that. I give wings to your imagination. So just go and get those wings for yourself and go and fly. Rise. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this episode, and if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. Just go on Amazon, वहाँ जाइए, आप टाइप करिए मनविंदर कौर मैम की बुक आ जाएगी. जरूर खरीदें, पढ़ें और जानने वालों के साथ, चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें. Thank you so much, ma'am, for enlightening us with your words. It was truly an amazing experience to have you on our show today. Same here, Gaurav. Thank you so much for such a wonderful conversation we had, and it was not at all that I'm talking to you the first time. It was as if we are long time buddies, and thank you so much for my audience also. Thanks a lot, and God bless you all. Thank you so much.